ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮ ਤੋਜ ਕਹੀਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤਿਰ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣਤ ਸੁਮਤ ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਣਾ
दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग या ना, तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सूरजक अंबरावै। सब घट भीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संभार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, चवर छतर अते सिंघासन दे मालक, बाणी के बोहित सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी। ਜ਼ਾਹਰ पीर जगत गुरु बाबा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ਅਤੇ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ਦੀ पवित्र चरण छो प्राप्त महान पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब विखे सुभायमान बहुत ही सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी वडभागे हो, जो प्रातः काल नींद आलस आदि का त्याग करके उद्यमी बनदियां होयां गुरु दरबार पहुँच के गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो। हजूर सारियां संगतां दियां हाज़रियां तिल फुल सेवावां भेटावां अपने दर पर प्रवान करन, सबना दियां शुभ मनोभावनावां गुरमत अनुसार संपूर्ण होण जी। नाचीज सेवादार दी गुरु चरनां च ऐसी जाति अरदास भी है। सन्मानयोग साध संगत जी भगत रविदास जी के जन्मदिन नूं मुख रखदिआं जो उन्हां दे पवित्र बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच निरूपण हन, उन्हां दी लड़ीवार कथा विचार का सिलसिला जो निरंतर जारी है, उस अधीन हुणे हुणे आप जी ने जो बड़ी भावना शरधा शिद्दत नाल शब्द सरवण किया है। ये पवित्र शब्द भगत रविदास जी का उचारण किया होया सूही राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 793 तो शुरू होकर 794 ते समाप्त होंदा है। आओ रहिंदा समा भगत रविदास जी के उचारण किए हुए इस शब्द की कथा विचार समझन समझाने का यतन करिए भी भगत जी ने इस शब्द में सानू सारिਆਂ ਨੂੰ की सुनेहा दिता है। दास आप जी के चरणों में अगलियां बेनतियां करे। इस तो पहला आओ रोजाना की तरह साध संगत मन की एकाग्रता ते रसना की पवित्रता वास्ते सारी संगत प्यार भेज इकट्ठे होके उचारण करिए ते आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। विचारधीन शब्द दे केंद्री भाव वालियां पंक्तियां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਣਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਸੌਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਥੋੜਾ समय ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਏ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਣਾ, ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਏ कि कम से कम 6 घंटे जिहड़ी नींद है वो शरीर ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਹੈ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਗਾਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਾਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। एक बारी सारी संगत फिर खेचल देंगा थोड़ी जी, उच्चारण करो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, समत बख्शो। गाफलता दा संबंध मन नाले तन नाल नहीं। वाहिगुरू। एक बारी सारी संगत करो कृपा, आखो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 क्या तू सोया जाग इयाना तैं जीवन जग सच कर जाना गाफलता दी नींद। कईयां थावां ते बाणीकार संगत नूं मुखातब हो के कहिंदे ने जागो जागो सुत्तिओ चलिया वणजारा। बड़ी हैरानी दी गल है, 1000 लोगां दा इकट्ठ सामने बैठा होवे और धार्मिक आगू कह रहा हो जागो जागो सुत्ते हो चलिया वणजारा, तो गल मत्था ठणकदा भी असी तो ऑलरेडी जागने पे। ठीक है, असी शरीरक तौर पर जाग रहे हैं, पर जे साडे जागदे होया भी बाणीकार सानू कह रहे ने जागो जागो सुत्ते हो, इहदा मतलब कोई होर नींद है जिहदे विच असी सौ रहे हैं, और वो गाफलता दी नींद है। गाफलता दी नींद किस तरह की हुंदी है? जिस तरह अमृत बाणी विच हजूर ने फरमान किया है, पंडित जन माते पढ़ प्राण, जोगी माते जोग ध्यान, सन्यासी माते अहमेव, तपसी माते तप कै पेव, सब मद माते को न जाग, संग ही चोर घर मूसन लाग। पंडित सुते हुए ने पुराना पढ़ पढ़ के, की मतलब इन्ना अध्ययन किया, इन्ना अध्ययन किया, इन्ना अभ्यास किया भी अभ्यास ही हंकार बन गया और हंकार दी नींद सौ गए। पंडित जन माते पढ़ प्राण, जोगी माते जोग ध्यान। जोगियां ने पहाड़ां दियां कंधरां च बैठ के मैडिटेशन किया, लगातार मैडिटेशन किया, लगातार मैडिटेशन किया, और मैडिटेशन ही, ध्यान ही, समाधि ही उन्हां दा हंकार बन गया और हंकार दी नींद विच सौ गए। पंडित जन माते पढ़ प्राण, जोगी माते जोग ध्यान, सन्यासी माते अहमेव, तपसी माते तप कै पेव। तपसियां नूं तप दा हंकार, सन्यासियां नूं अपना अहंकार, और अहंकार ही अहंकार। इनू कहंदे ने गाफलता दी नींद। इन थोड़ा जिहा होर समझ लो। जदों गुरु नानक साहब महाराज दी सिद्धां नाल गोष्ट होई ते महाराज गुरु नानक साहब नूं सिद्ध सवाल करदे ने, महाराज जवाब देंदे ने लगातार। हुण महाराज कहंदे भी तुसीं भी कोई दसो ना भी तुहाडा सिद्धांत की है, तुहाडी विचारधारा की है। फिर वो कहंदे ने महाराज भी साडी विचारधारा भी हाटी बाटी रहें नराले। साडे गुरु ने कहा भी तुसीं हट्टी नहीं पानी, बाटी वाटिका, वाटिका मैंने खेती, वाई वाई नहीं करनी, ध्यान दिया जी। क्या तू सोया जाग इयाना, भगत रविदास जी के जन्मदिन को समर्पित असी उन्होंने दे बचन विचार रहे हैं, और अज दे विचारधीन बचनों की रहाव वाली पंक्ति च भगत रविदास साहब महाराज सानू जगाना चाहते हैं। पर पहला असी ये तो समझिए भी असी सुते किहड़ी नींद आ, शरीरक नींद या गाफलता की नींद। तो गाफलता की नींद चो सानू जगाना चाहते हैं, और गाफलता की नींद की परिभाषा की है ये समझ में आवे, इस वास्ते थोड़ा जिहा उचेची तवज्जो दिया जी। सिद्ध कहते हैं गुरु नानक साहब ने भी हाटी बाटी रहे नराले। असी कोई कारोबार नहीं करते, कारोबार तो असी अपने आप को वखरा कर लिया, नराला कर लिया। असी काम करन च विश्वास नहीं रखते, मंग के खाण च विश्वास रखने। असी ना तो काम करने आ, ना आने वाले समय साडा कोई करन दा इरादा है, असी मंग के खाण च विश्वास रखने। इसलिए हाटी बाटी रहे नराले। तो महाराज हाटी बाटी रहे नराले वाली पंक्ति का जो जवाब देंगे ना, वो बख्शिश करते, कहते हाटी बाटी नींद ना आवे।
मैं हाटी बाटी तो नराला नहीं रहिंदा, मैं सुल्तानपुर हट भी चलांदा रहा, तलवंडी साडी जमीन है, मैं खेती भी करता रहा, मैं मझां भी चारदा रहा, और मैं होर भी कई कारोबार कीते ने। कारोबार कोई माड़ा नहीं, पर मैं ये गल कहना भी कारोबार कोई भी करो समो ना। हुण इत्थे थोड़ा जिहा उचेचा ध्यान दे, कारोबार करन लगा बंदा नहीं सौंदा, कारोबार करन लगा बंदा थोड़ा सौंदा है, पर नहीं फिर भी सौंदा है। शरीरक तौर पर कारोबार विच असीं बड़े अलर्ट हुंदे आ, कारोबार थोड़ा कोई सौंदा है। कोई दुकान ते बंदा सौंदा थोड़ा, कोई चीज़ ना चुक के लै जाए, हासिल ना घट जाए। जिहड़ा कैलकूलेटर है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ किवें ਉਂਗਲਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। एक भी हासिल असीं वध घट नहीं होण दिंदे भी एक हासिल नाल 1000 ਦਾ 10,000 ਦਾ फर्क पै सकदा है। बड़ी इकाग्रता नाल असीं हिसाब करने आ। पर महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहंदे भी हट्टी ते बैठे आ, वाही करदे आ, नौकरी करदे आ, एक गल दा ध्यान रख भी गाफलता दी नींद च ना सवीं। तैनूं ये चेता रहना चाहिए मैं कौन आ, कित्थों आया वां और मेरे जीवन का प्रयोजन की। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। सानू असली ना अपना नहीं भुलना चाहिए। मेरा ना आत्मा है और मैं दरगाह चों आया है, और मेरे जीवन का प्रयोजन जो है आयो सुनन पढ़न को, यह है जागदे बंदे की निशानी। जे भुल गया तो मैनू खिमा करना, मानो असी सुते हुए हैं। महाराज कहने लगे हाटी बाटी नींद ना आवे, किरतकार करदे आ लगातार तलखी लगी रहे भी मैं प्राहुणा वां, मैं इत्थे सदा नहीं बैठे रहना। ये जिन्ना भी वलेवा है मेरे मनोरंजन वास्ते, ये विचों कुछ भी मेरे नाल नहीं जाण। ये भावना लगातार बनी रहे, अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करते रहिए, मानसिक तौर पर तैयार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। फिर जाके इस तरह की अवस्था बनती है भी जेकर सहब मनो ना विसरै तो सहला मरना होए। किसी चीज़ को जिन्ना घुट के पकड़िए ना, कोई छड़ाए उन्नी ज़्यादा तकलीफ होंदी है, और किसी चीज़ को घुट के पकड़िए ही ना तो छड़ाउण विच कोई तकलीफ है ही नहीं। असी संसार की पकड़ नूं बिल्कुल ढिला कर देना है, ढिला नहीं करना बल्कि पकड़ खत्म कर देनी, फिर जान लग्या कोई तकलीफ नहीं। और जिन्नी पकड़ मजबूत है, तुसीं छोटे छोटे बच्चों नूं वेख्या लड़ पैंदे, एक दूजे के केस घुट के पकड़ लेंदे, और उहदे हत्थ विचों उहदे केस छड़ाउण लग्या उहदे हत्थ छिलने पैंदे ने, छड्डदा ही नहींगा। क्यों? क्योंकि पकड़ मजबूत है। जिन्नी पकड़ मजबूत है, जिहदे केस पकड़े ने उन्होंने तो दुख हो रहा, जिन्हें पकड़े ने ना हाथ वह भी छिलिया जाता है, छडान लग्या। तो जे पकड़ मजबूत ना होंदी हाथ नहीं छिलिया जाना। असी पकड़ नूं ढिला करना है, यह है जागना। भगत रविदास साहब महाराज कहते हैं क्या तू सोया है जीव, तू की सुता होया गाफलता दी नींद विच, जाग इयाना ऐ अज्ञानी जाग पाओ तै जीवन जग। ये जड़ा जग का जीवन है सच कर जाना। महाराज फिर ये सच नहीं? महाराज कहते नहीं सच नहीं, फिर की है? बाणी पता की कहती? हजूर कहते जग जीवन ऐसा, जग वखरा जीवन वखरा। इनू संधि छेद करके पढ़ांगे। ये दो रा जग जीवन आता है, एक बार जग जीवन वखरा, एक बार जग जीवन कट्ठा कहना। जग जीवन ऐसा, महाराज जग जीवन कैसा? हजूर फरमान करते हैं जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। ये जीवन सुपने वर्गा है और तू इनू सच मान बैठा है। साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान, परम मैंने सब तो उच्चा, निधान मैंने खजाना, सब तो उच्चा खजाना भाव अकाल पुरख नूं छड्ड के, निरंकार नूं छड्ड के और संसार नाल असीं गंढ पीढ़ी पा लईए और निरंकार नाल कदी नाता जोड़े को नहींगा। जग जीवन ऐसा, महाराज जग जीवन कैसा? कहने लगे सुपने जैसा। कहते ने किसी चक्रवर्ती सम्राट का इकलौता पुत्र बीमार हो गया, उन्हें सारी रियासत के वैद इकट्ठे कर लिया, ट्रीटमेंट करो, इलाज करो,
कथा लंबी है, मैं मुक्तसर अर्ज करा। उन्हें इलाज शुरू किया और कई महीने इलाज करने तो बाद वैदा ने जवाब दे दिता, कहने लगे भी बच्चा नहीं ठीक हो सकता, नामुराद बीमारी है, सेवा कर लो जिन्नी हो सकती है, बच्चा नहीं राजी होएगा। सारे वैद बारी बारी रुखसत हो गए। बेटा मरण सैया ते लेटिया होया है, एक पासे राजा एक पासे राणी दिने रात पहरा देंदे ने, कदी लत्तां बाहां घुटदे ने, कदी चम्मच नाल मूँह च पानी पाते ने, और समय का पहिया अपनी चाले चलता रहा। कई महीने होर लंघ गए। एक दिन बेटा लेटिया होया सी, एक पासे राणी बैठी एक पासे राजा बैठा। बैठिया बैठिया राजे की अख लगी हुई अख विच सुपना चल गया। सुपने विच भरे पूरे परिवार विच जन्म होया, छेती छेती गभरू हो गया। क्योंकि सुपने का जिहड़ा टाइमिंग है ना, वो किसी फिल्म की मूवी वांगू बड़ी छेती छेती लंघदा है। गभरू होया, मापियां विआह कीता, बेटा होया घर दे विच, फिर दूजा होया, तीजा, 6 पुत्तर होए सुपने विच ही, और 6 ਨੂੰਹਾਂ उन्हां दे विआह कीते। फिर अगों एक एक कोल 2-2 3-3 बच्चे ने। घर विच कोई समागम सी, विचकार बैठा है, 6 पुत्तर 6 ਨੂੰਹਾਂ, पोतरे दोतरे, हर्ष उल्लास का माहौल है। और राणी ने चीख मारी, राजे की नींद टुट गई, नाल ही सुपना टुट गया। कहने लगा की होया है? आखन लगी जो होना सी हो गया, बेटा चला गया। राजा हसरत भरी निगाह नूं अपने बेटे की डैड बॉडी नूं वेंदा है। राणी कहती है जी 2 अथरू कितों उधारे लियाने जे, रोंदे क्यों नहीं, धा मारो। वो कहता राणी रोना तो मैं है, पर मैं सोच रहा भी इनू रोवां कि उन्हां नूं रोवां। हद हो गई, उन्हां नूं किन्हां नूं? मैनूं पहलां ही शक सी भी जिदन पुत्तर नूं कुछ होया तुहानूं कुछ हो जाना है। उही गल होई। आखन लगा मैनूं कुछ नहीं होया राणी, मेरे 2 परिवार ने, एक परिवार तेरी चीख ने मेरा नेस्तो नाबूद कर दिता है, और दूजा तेरे सामने है। दस मैं रोना तो दोवां नूं चाहुंदा वां, उहदे च भी मैनूं सुपने च बड़ा आनंद आया है, पर पहलां इहनूं रोवां कि उहनूं रावां। कोलों कोई दरवेश लंघ रहा सी, वो कहण लगा भलिया ना इहनूं रो ना उहनूं रो, एक जागदियां दा सुपना है, एक सुत्यां दा सुपना है, और दोवें सुपने ने। ज्यों सुपना और पेखना तैसे जग को जान, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानंग, साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधानंग, बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हेर ली। यह ज्ञान नहीं किताबी ज्ञान जिहड़ा मैं तुहाडे सामने रख के, ज्ञान यथार्थ संसार की असलीयत, ये ज्ञान। माया दे मोह ने मेरे ज्ञान नूं मेरे तो खो लिया है, और मैनूं असलीयत नहीं समझ आ रही। लालटन जग रही है, चिमनी साफ नहीं की, और रोशनी अंदरों बाहर नहीं आ रही, इस करके हनेरा। बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन। माया दे मोह ने मेरे कोलों ज्ञान रूपी रतन खो लिया। नैन देख पतंग उर्जै पश ना देखे आग। जिवें अखां नाल पतंगा शमा नूं वेख के उलझ जांदा, उहनूं पशु नूं अग नहीं दिसदी, इसे तरह मनुख दा हाल है। नैन देख पतंग उर्जै पश ना देखे आग, काल फांस ना मुग्ध चेता है, कनक कामन लाग। पराए तन ते पराए धन नूं इस तरह चंबड़दा जिवें पतंगा शमा नूं चंबड़दा। उहनूं शरीरक मौत मिलदी है, तैनूं इहदे विचों आत्मक मौत मिलेगी। कर विचार, ठंडे दिमाग नाल सोच, विकार पर हर विकारां दा खैड़ा छड्ड दे, क्योंकि तरन तारन सोए कहो कबीर जगजीवन ऐसा। इत्थे जगजीवन इकट्ठा कहना है, दुतिया ना ही कोई। क्या तू सोया जाग इयाना, तै जीवन जग सच कर जाना। तू इस संसार विच वसेबा पक्का समझ लिया, सदा रहन वाला समझ लिया, पर यह तेरा वसेबा पक्का नहीं गा। क्यों? क्योंकि जो दिन आवे सो दिन जाही। जिहड़ा दिन आउंदा है, वो दिन गुजर जाता और परत के हथ नहीं ना आउंदा। दिन ते पैर, पैर ते घरियां आब कटै तन छीजै। लिखे काल अहेरी फिरै बदक जो कहो कवन बिद कीजै। सो दिन आवन लागा। को दिन आवन लागा? जिदन शरीर नालों पौरने लग होना, वो दिन नेड़े आ रहा है। दिन दिन करके, पैर पैर करके, घड़ी घड़ी करके। भाई साहब भाई गुरदास जी